Hello everyone. Now in this session we'll see another example on synchronous counter, which is nothing but to design 3-bit up and down counter using D flip-flop. It means we have to design a counter which works as up as well as down at the same instant of time. So whenever we'll be getting such kind of questions, our priority will be first as usual. Without panicking, first we'll start with number of flip-flops. नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हमें डिज़ाइन करना है 3 बिट। और हमने देखा था अगर मैं एक फ्लिप फ्लॉप यूज़ करता हूँ तो वन बिट स्टोर करता है। हमें 3 बिट का डिज़ाइन करना है तो क्या लगेगा, 3 फ्लिप फ्लॉप्स वी विल रिक्वायर्ड। लेट्स सपोज दे आर D2, D1 एंड D0। तो यहाँ पर तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा 2:n का, बिकॉज स्ट्रेट अवे उन्होंने दिया है 3 बिट का डिज़ाइन करना है। So we need 3 flip-flops. Now second step is state diagram. Now the interesting fact is here it should act as up counter as well as down counter, and it's a 3-bit. So if it is a 3-bit counter, definitely we need 8 combinations starting with 0 to 7 क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स आर 3 रिक्वायर्ड। और अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते तो 2:n 2:3 will be 8. So we need 8 combinations. Let's start with first 0. From 0 we'll get 1, from 1 we'll get 2, and from 2 we'll get 3. From 3 we'll be getting 4, 5, 6 and 7, and from 7 it is 0. So this will be a schematic counting 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At the same instant of time it should count in a reverse way. So it should count like from 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. So it should work in both ways. This is for up counting and this one is for down counting. तो हमें यहाँ पर एक कंट्रोल सिग्नल लेना पड़ेगा that will decide when to go for up counting and when to go for down counting. ओके, अब देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने कंट्रोल सिग्नल यूज़ नहीं किया था क्योंकि हमें एक तो अप काउंटर डिज़ाइन करना था या फिर डाउन काउंटर, लेकिन यहाँ पर हमें अप भी काउंटर डिज़ाइन करना है और डाउन काउंटर। सो इन दैट केस विल यूज़ ए कंट्रोल सिग्नल जिसको हम कॉल करेंगे एज ए मोड सिग्नल। इट विल डिसाइड when the counter is going for up counting and when it is switching for down counting. तो इसी डायग्राम को हम बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे स्टार्टिंग विद 0. नाउ वी नीड 3 फ्लिप फ्लॉप्स, तो एवरी स्टेट का 3-bit रिप्रेजेंटेशन विल यूज. लेट्स स्टार्ट विथ हियर आई विल बी राइटिंग 0 and again 000. From 0 either we can go for 1, so we'll get 001. From this we'll get for 2, 010. From there we'll go for 3, 011, and from 3 we'll getting 4, so it will be 100. From 4 we'll be getting for 5, which is nothing but 101. From 5 to 6, 110, and from 6 to 7 as 111. So we have used the same in terms of the binary format. अब हमें डायरेक्शन दिखाना है when it is going for up counting, when it is going for down counting. So सबसे पहले बात करते हैं अप काउंटिंग. अप काउंटिंग देखिए 0 से 1, फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 and 7 to 0. तो ये तो आ जाएगा हमारा अप काउंटिंग का. नाउ रिवर्स वे टू गो फॉर डाउन काउंटिंग. सो फॉर डाउन काउंटिंग देखिए फर्स्ट 0 से लेके 7, फ्रॉम 7 6, देन इट इज़ 5, 5 से लेके 4, 3, दिस इज़ 2, 1 और बाद में है 0. तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम आ जाए.
अब हमें मोड सिग्नल यूज़ करना है। देखिए मोड सिग्नल के दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक तो 0 अदरवाइज 1, यानी कि इसका वैल्यू एक तो 0 या फिर 1 आ सकता है। तो हमें डिसाइड करना है अगर 1 है तो क्या हो जाएगा और 0 है तो क्या हो जाएगा। सो इन दैट केस ऑलवेज यू हैव टू यूज whenever mode is 1 it should work as up counter. सो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है whenever mode is 1 the counter should work as up counter, and whenever mode signal is 0 it should work as a down counter. It is working as a down counter. So mode 1 up counting, mode 0 it will work as a down counter. So ये तो हो गया हमारा स्टेट डायग्राम. I hope you are getting it. What we did, we have used the same for up counting as well as down counting. Only the difference is with the black line we have shown up counting and with this color we have shown the down counting. So when m is 1 up count हो जाएगा और अगर m 0 है तो डाउन काउंटिंग हो जाएगा. ये तो हमने लिख लिया स्टेट डायग्राम. Now let us go for third step. As usual, excitation table. Excitation table. So in case of excitation table, first we'll write present state. Now we need 3 flip-flops. So present state will be Q2, Q1, Q0. Here I will write mode signal. That is nothing but M. Because कब अप काउंट और कब डाउन काउंट करना है वो डिसाइड करेगा मोड सिग्नल. एंड फ्रॉम दैट विल गेट नेक्स्ट स्टेट Q2, Q1, Q0 और यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एक्साइटेशंस. अब हमें यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है, तो जो रिक्वायर्ड एक्साइटेशन है वो आ सकता है D2, D1 और D0. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट स्टेट. अब देखिए प्रेजेंट स्टेट तो हमारे पास है 0 से लेके 7 तक, 0 to 7. लेकिन हर प्रेजेंट स्टेट के दो नेक्स्ट स्टेट्स आ रहे हैं, एक तो अप काउंटिंग या फिर डाउन काउंटिंग. तो इसके लिए हर एक प्रेजेंट स्टेट को हम 2 टाइम्स रिप्रेजेंट करेंगे. लाइक फर्स्ट 0 0 0, ये भी 0 0 0 है. वाई दिस इज बिकॉज whenever it is 0 0 0 so mode signal will decide. let's suppose mode signal is 0. अब देखिए अगर मोड सिग्नल 0 है 0 0 0 तो इसका नेक्स्ट स्टेट क्या आता है 1 1 1. तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1. सिमिलरली अब देख सकते हैं 0 0 0 मोड सिग्नल 1 तो क्या जा रहा है वो 0 0 1 को जा रहा है. so whenever it is 1 we'll get 0 0 1. that's why every state we have to write it 2 times. so let's start with next 0 0 1 0 0 1 0 1 0. this is 0 1 0 0 1 1 0 1 1. नेक्स्ट 4 के लिए कहेंगे 1 0 0 1 0 0. 5 this is for 6 and finally for 7 this is 1 1 1. okay, so let's start for the next one. देखिए 0 0 1 again 0 0 1 के लिए देखिए 0 0 1 का when it is 0 it goes to 0 0 0 and 0 0 1 whenever 1 it is goes to 2 यानी कि 0 1 0. तब तक मैं यहाँ पर लिखता हूँ हर स्टेट के लिए मोड सिग्नल 0 1 0 1 0 1. अब हम 2 के लिए चलते हैं 0 1 0. देखिए 0 1 0 का इनपुट 0 है तो जा रहा है 0 0 1 की तरफ 0 0 1, और जब ये 1 है तो जा रहा है 0 1 1 को. नेक्स्ट 0 0 1 का 0 1 1 का नेक्स्ट स्टेट इनपुट 0 के समय जा रहा है 0 1 0 एंड व्हेन इट इज़ 1 इट गोज टू 1 0 0. सिमिलरली 1 0 0 के लिए देखिए 1 0 0 के लिए व्हेन इनपुट इज़ 1 इट गोज टू 1 0 1 एंड व्हेन इनपुट इज़ 0 0 1 1. सिमिलरली फिफ्थ के लिए भी, फिफ्थ के लिए इनपुट 0 के समय जा रहा है 1 0 0, 1 के लिए जाता है 6 को 1 1 0. 1 1 0 का भी देखिए when input is 1 it switch to 1 1 1 and when input is 0 it goes to 5 1 0 1. So we have here at 1 1 0 when input is 0
तो 110 इनपुट 0 कितने में जाता है 101 के लिए 101 एंड व्हेन द इनपुट इज 1 इट गोज टू 111 लास्ट 111 व्हेन इनपुट इज 0 इट गोज टू 110 110 and when the input is 1 you can see ट्रिपल वन वन इज 1 इट गोज टू 000 तो ये आ जाएगा 0 0 और 0. So this is how we taken up the next step. Now the last step is nothing but required excitation. So we have to use excitation table of D flip flop. It's quite simple. Qn plus 1 is equal to D, यानी कि जो भी नेक्स्ट स्टेट है वही D आ जाएगा. तो D2 के लिए हम Q2 कॉपी करेंगे, D1 के लिए Q1 और D0 के लिए कॉपी करेंगे Q0. So we'll write the same equation, same values whatever written in the next state. So we have first 111, then 001, then we have 000, 010, 001, this is 011, then 100. Here we have 011, 101, 100, 110, 10. So we'll simply copy this. This is 111, 110 और ये आ जाएगा 00 and this is 0. So this is how we have written the required excitation. Now the final step we'll go for minimized expression. मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन की तरफ चलते समय सबसे पहले हम देखेंगे D21 कब है और हमें कितने वेरिएबल्स लगे. तो देखिए सर, वी हैव 3 प्रेजेंट स्टेट्स एंड देयर इज अ मोड सिग्नल m. दैट मीन्स in order to fetch the expression for D2, D1, D0 we need 4 वेरिएबल के मैप. वे 4 वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं? Q2, Q1, Q0 and m. So based on these 4 variable we will fetch the expression. So let's go for the minimal expressions. Here it is. I have drawn a 4 variable के मैप और हमने यहाँ पर D2 को मार्क भी कर लिया है. दैट मीन्स फ्रॉम द एक्साइटेशन टेबल व्हेन D2 इज हाई ये हमने यहाँ पर मार्क कर लिया. अब हम इनपुट्स अगर देखते हैं तो देखिए क्या है इनपुट्स है Q2, Q1, Q0, m. तो इसी टाइप में हम इसको नरेट करेंगे. Q2, Q1 ये है Q0 और ये है m. Now let's substitute those values. So we have 0, 7, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. So these all terms are 1. Now let's come across the mapping. तो अगर हम मैपिंग करते तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर. तो इसको अगर हम देखते तो इसके एडजेसेंट में कोई नहीं तो ये आ जाएगा आइसोलेटेड. दिस इज ऑल्सो आइसोलेटेड. ये तो हो गया. अब हम 12 और 13 का एक पेयर ले सकते हैं. दैट वी हैव टेकन एज पेयर बिटवीन 12 एंड 13. नेक्स्ट हम 9 और 11 का एक पेयर ले सकते हैं और 14 एंड 10 का एक पेयर लेते हैं. सो वी गॉट 3 पेयर्स एंड 2 isolated terms. So equation will be D2 is equal to, for this one both are 0 0, so this is Q2 bar, Q1 bar, and from this side Q0 bar, m bar plus. इसके लिए देखिए ये 0 1 है तो ये आ जाएगा Q2 bar, Q1, Q0 m plus. Now for this 2 12 13 इसके लिए देखिए 1 1 है तो ये आ जाएगा Q2 Q1 and from these two terms we can take 0 as common तो ये आ जाएगा Q0 bar plus. for this one ये है देखिए Q2 Q1 bar और यहाँ से अगर हम ये 1 कॉमन लेते हैं तो I can write m plus. for this one I can take 1 as common तो ये आ जाएगा Q2 and here it is Q0 into m bar. So this becomes a lengthy expression for D2. Similarly, I can go for D1 also. D1 देखिए कब कब 1 है 0, 3, 5, 6, then 8, 11, 13 and 14 के लिए 1 है. So let's again map those terms. So if the mapping start, first of all 0 adjacent देखिए 0 और 8 का एक पेयर हो सकता है. Next we can take a pair between these two. Okay,
5 और 13 का एक पेयर आ जाएगा, एडजेसेंट है, और 3 और 11 का एक पेयर आ जाएगा। दैट मीन्स वी गॉट 4 पेयर्स। सो विल राइट द इक्वेशन D1 इज इक्वल टू, सबसे पहले 0 और 8 के लिए देखिए, 0 और 8 के लिए इन दोनों टर्म्स में से हम ये 0 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ Q2 Q1, यह है Q0 यम। इफ आई टेक 0 एज कॉमन विल गेट Q1 बार, तो यहाँ से हमें मिल गया Q1 बार, ओके। एंड फ्रॉम दिस साइड विल बी गेटिंग Q0 इंटू यम बार, ये तो एज इट इज है। अब 5 और 13 का बात करते हैं। देखिए 5 और 13 में ये सेकंड वन कॉमन ले सकते जो बिलोंग करता है Q1 को, तो यह आ जाएगा Q1 एंड फ्रॉम दिस साइड विल बी गेटिंग Q0 इंटू यम प्लस। नेक्स्ट 3 और 11 के लिए देखिए, 3 11, 3 के लिए 0 0 है और 11 के लिए 1 0, तो इन दोनों में से ये 0 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा Q1 बार, और ये ऊपर से तो 1 1 है तो ये आ जाएगा Q0 इंटू यम प्लस 6 14 को देखिए, 6 के लिए है 0 1 और 14 के लिए है 1 1, तो अगेन इस 1 को अगर कॉमन लेते तो आ जाएगा Q1 एंड फ्रॉम दिस साइड Q0 इंटू यम बार। तो ये इक्वेशन आ गया हमारा D1 के लिए। Now this question becomes, a tedious one because it is working as up and down counter. Lastly, let's go for D0 mapping. First we'll assign Q2 Q1 Q0 yum. It is 1 for 0 1, then it is 4 5 8 9 12 and 13. Okay, this is probably the simplest one, so we can map all of them, so it will be an octet, so that equation holds D0 is equal to, अब यहाँ से तो सभी सेल कवर हो रहे तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों में से हम इस 0 को कॉमन निकालेंगे जो कि है Q0 पर, सो D0 आ गया हमारा Q0. So this will be the minimized expression. Now the most important question arises, sir, how can you design its logic diagram? So let's see the last step as the logic diagram. It could be 4th या 5th स्टेप हो सकता है, तो अगेन हम फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करते 3 फ्लिप फ्लॉप्स को एज D0 D1 और D2. सो आई विल बी ड्रॉइंग इट. सो आई हैव ड्रॉन दिस, ये हम D0 लेते हैं, दिस इज D1, और ये हम लेते हैं D2 को, Q2 और Q2 पर. एज यूजुअल सर, द वेरी फर्स्ट स्टेप वी शुड अप्लाई द क्लॉक पल्स. This will be our clock pulse. This is the clock pulse. ये तो हो गया. अब हम चलते हैं D0 की तरफ. D0 इज इक्वल टू क्या दिया गया, Q0 बार, यानी कि ये जो Q0 बार है ये हम कनेक्ट करेंगे D0 के अक्रॉस. तो Q0 बार हमने कनेक्ट किया D0 के अक्रॉस. नाउ लेट्स गो फॉर D1. तो देखिए D1 जो है वो है 1 2 3 4 प्रोडक्ट टर्म्स का एडिशन करना. तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एक और गेट को, और इसके हुए 4 इनपुट्स. तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म है हम ये लिखेंगे Q1 बार Q0 बार यम. दूसरा इनपुट हम ये लेते हैं Q1 Q0 बार यम, Q1 Q0 बार यम. लेट्स टेक द थर्ड इनपुट एज Q1 बार Q0 यम, और ये फोर्थ इनपुट लेते हैं हम यहाँ से Q1 Q0 यम बार, यानी कि हमने यूज किया एक 4 इनपुट का और गेट. सिमिलरली लेट्स गो फॉर D2. 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 इनपुट्स का और गेट हमें यूज करना है. हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं. बिफोर दैट विल कनेक्ट द इनपुट्स. लेट द फर्स्ट इनपुट इज this one, Q2 bar Q1 bar Q0 bar yum, Q2 bar Q1 bar Q0 bar yum bar. Let's take the second input यहाँ से Q2 bar Q1 Q0 yum. थर्ड इनपुट हम लेते हैं यहाँ से Q2 Q1 Q0 bar, Q2
Q1 Q0 बार. लेट्स टेक द फोर्थ इनपुट. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. Q2 Q1 बार M, और यहाँ पर मैं लेता हूँ द लास्ट वन Q2 Q0 M बार. Q2 Q0 M bar. Okay, so whatever the terms we have written here, we are simply putting it here. और यहाँ से हम लेते हैं Q2, ये Q0 Q2 बार, ये Q1 बार और ये Q1 है. लेट्स टेक Q0 बार. सो ये आ जाएगा हमारा सिंपलेस्ट लॉजिक डायग्राम फॉर 3-bit अप एंड डाउन काउंटर. Okay, so this is how one can design both up counter as well as down counter. Okay, so let's stop here. Thank you.